Okay, so let's start with tuberculosis. So, tuberculosis is a bacterial infection and it is caused by Mycobacterium tuberculosis, which is also sometimes referred to as MTB as a short form, and Mycobacterium bovis. In humans, the main causative agent for tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis and it affects your lungs. On the contrary, Mycobacterium bovis mainly affects cattle and it causes diseases. It basically causes tuberculosis in your cattle, in your cows, bulls, etc. Now, what is the mode of transmission of tuberculosis? So, if we talk about Mycobacterium tuberculosis, which is your MTB, so MTB is an aerosol droplet infection. What is an aerosol droplet infection? Basically, this infection travels air, in the form of droplets in the air. What do I mean by this? For example, there's a patient who is infected by the pathogen of TB. If that person coughs and sneezes, due to which the mucus or the saliva basically expels out of the person's body and becomes a part of the atmosphere, becomes a part of the air which is present in the environment. And those air droplets, the infected air droplets of the infected patient who has just coughed or sneezed, are inhaled by an uninfected person from the air, then that is how Mycobacterium tuberculosis travels in the form of droplet infection. We all have seen the coronavirus pandemic. So, coronavirus also was an aerosol droplet infection. That is why we were using masks so that we don't catch any infected droplets from the environment. And similarly, the patients of COVID or corona wore the masks in order to protect other people from catching corona from them. So, in order to protect people from catching COVID, we we all were advised to wear masks because it travels in the form of air droplets and it can enter in your body through your nose and through your mouth. So that is how Mycobacterium tuberculosis is acquired or is transmitted through aerosol droplets. When we talk about Mycobacterium bovis, now as I told you, Mycobacterium bovis causes TB in cattle. Now, if a human consumes cattle which is infected, sorry, if anybody consumes a cattle product which can be meat or milk which was infected with the Mycobacterium bovis, then that person or that human can acquire Mycobacterium bovis and can suffer from TB. Now, the thing is that if we are using cow milk or if we are consuming cattle meat, now if we are cooking it, like if we are cooking the meat on flame, so obviously the high heat of the flame would cause the bacteria to die. Similarly, if we are boiling the milk, we are pasteurizing the milk, we are providing such an environment in which the bacteria would be unable to survive. So, we can protect ourselves from catching Mycobacterium bovis by consuming properly cooked meat and by consuming pasteurized boiled milk. So basically, Mycobacterium bovis can be transmitted through unpasteurized milk and undercooked or uncooked meat. Another way through which tuberculosis can be transmitted is by a vertical transmission. Now, what is vertical transmission? Vertical transmission is basically when a pathogen or an infection is transferred from the mother to the child. Now, this can happen in two ways. Um, major, Actually, for tuberculosis, first and foremost, vertical transmission is very rare.
in very rare case scenarios would it happen that an infected mother would transfer the mycobacterium or the pathogen of tuberculosis to the child via the placenta. So if the transmission occurs across the placenta in a pregnant woman to the fetus, that would be considered as a vertical transmission. Now, if we talk about diagnosis, how is TB diagnosed? So, first and foremost, the gold standard to diagnose TB is sputum culture. We would basically take a sputum sample of an individual and we would do the microscopy of that sputum, which is known as a sputum culture. And if we observe any strains of the mycobacterium, then we would do a confirmation. We would basically do a confirmatory test in order to confirm whether the patient is infected by tuberculosis or not by a chest X-ray. Now, what does a chest X-ray tells us? This chest X-ray basically tells us that whether the lungs of the patient have been affected by the mycobacterium, and if they have been affected, then to what extent have they been infected? किस हद तक लंग्स में आपका पैथोजन पेनिट्रेट कर चुका है, इन्वेड कर चुका है. सो यूजुअली हमारी जो नॉर्मल लंग्स होंगी वो इस तरह की हमें नजर आ रही होंगी, में कोई पैचेस हमें नजर नहीं आ रहे होंगे. बट if there's a person whose lungs are affected by mycobacterium tuberculosis, and he would basically have lungs which would have certain patches like the ones I've drawn over here. और ये patches क्या indicate कर रहे हैं? These patches are basically indicating that the patient or the individual has bacteria in these regions of the lungs, and these regions of the lungs are basically affected by the mycobacterium. Now, what are the signs and symptoms of TB? Okay, so one of the most common symptom that the patients of tuberculosis have is persistent cough. वो कफ अक्सर इसको पुराने ज़माने में टीबी को ना काली खांसी का मर्ज भी कहा जाता था. So in TB, the individual coughs a lot. It could be dry cough, and if it's a phlegm filled cough, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारा बलगम होता है उसमें हमें खून भी निकलता है बलगम के साथ. So there is a high chance that a patient of TB throws out bloody phlegm. Then people who might be affected or who are affected by TB also undergo weight loss and develop the symptoms of fever. Now, एक misconception होती है कि fever एक बीमारी है, बुखार एक बीमारी है, which is actually not the case. Fever is basically a symptom of the disease. It's not a disease in itself. Now, why does a patient of TB have fever? And why do the patients affected by TB undergo weight loss? These two reasons, बुखार होने की भी वजह और weight loss की भी वजह almost interconnected है. Basically हमारे पास जो affected cells हैं, affected cells कौन से cells? All those cells which have been affected by the pathogen. वो तमाम cells जिसको mycobacterium ने invade कर दिया है, उन cells को हम affected cells बुलाते हैं जो कि mycobacterium से affected है. These affected cells secrete a substance which is similar to hormone. हमारी body ये जो chemical messengers होते हैं वो basically hormones होते हैं ना. Hormones are chemical messengers, neurotransmitters are chemical messengers. आप ये hormones और neurotransmitters को इंशाल्लाह control and coordination के chapter में पढ़ोगे in your A2. So basically hormones हमारे chemical messengers होते हैं. हमारे जो chemical messengers होते हैं वो एक part of the body में प्रोड्यूस होती हैं और वो अपने टारगेट सेल पे
तक मूव करते हैं और टारगेट सेल पे जाकर जब वो अटैच करते हैं, बाइंड करते हैं, सो दे कॉज सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू टेक प्लेस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा ओ लेवल्स में एंटी डायोरेटिक हार्मोन एडीएच. एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड आपका रिलीज करता है और बेसिकली एडीएच कहाँ पे जाके एक्ट करता है, किडनी के जो कलेक्टिंग डक्ट सेल्स होते हैं वहाँ पर एक्ट करता है एंड इट कॉजेज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सिमिलरली इंसुलिन जो हमारा हार्मोन है वो क्या करवाता है, वो बेसिकली ग्लूकोज की कन्वर्जन करवाता है इनटू ग्लूकागॉन. सो हॉर्मोन्स या कोई भी केमिकल मैसेंजर, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो या हमारे हॉर्मोन्स हो, दे हैव एन इफेक्ट ऑन द टारगेट सेल. सो जिस तरह से हमारे बॉडी के जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, हॉर्मोन्स एंड योर न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे कॉज सम इफेक्ट, सम चेंजेस टू टेक प्लेस. सिमिलरली ये जो हार्मोन लाइक सब्सटेंस हमारे अफेक्टेड सेल सिक्रीट कर रहे होते हैं, ये दो चीज़ें कॉज करता है. एक क्या कॉज करता है, इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर और इस वजह से हमारे पास फीवर डेवलप हो रहा होता है. एंड इट डिक्रीजेज और इट सप्रेसेस योर एपेटाइट. एंड बिकॉज योर एपेटाइट इज सप्रेस्ड, आपको भूख कम लग रही होती है, तो ऑब्वियसली आपको भूख कम लगेगी, सो यू वुड कंज्यूम लेस फूड एंड बिकॉज यू वुड बी कंज्यूमिंग लेस फूड यू वुड अंडरगो वेट लॉस. सिमिलरली वेट लॉस, चेस्ट पेन, नाइट स्वेट्स, ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स में हमें नज़र आ रहे होते हैं. नाउ so Mycobacterium tuberculosis affects humans and is transmitted through aerosol droplets. We just discussed that. Similarly, Mycobacterium bovis affects cattle mainly and is hence found in cattle meat and unpasteurized milk. In order to prevent acquiring Mycobacterium bovis, one needs to consume pasteurized milk and cooked meat. Now let's talk about the treatment. हमने mode of transmission की बात कर ली, diagnosis की बात कर ली, हमने signs and symptoms discuss कर लिए. What is the treatment of TB? नाउ टीबी इज़ नॉट योर यूजुअल डिजीज़ कि आपने 2-3 हफ्ते दवाएं खाएं, ट्रीटमेंट फॉलो किया, कोर्स प्लान फॉलो किया एंड यू आर गुड टू गो. नो, टीबी इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड क्रॉनिक डिजीज़, बहुत लंबी चलती है. कम से कम भी ना टीबी की जो ड्यूरेशन होती है दैट 6 months. सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग डिजीज़. तो इसकी जो ट्रीटमेंट भी होती है दैट इज़ प्रीटी लॉन्ग. सो 6 to 12 months या 6 to 8 months लॉन्ग इसकी ट्रीटमेंट चलती है, ठीक है. एंड इसमें हम खाली एक एंटीबायोटिक नहीं देते, हम कॉम्बिनेशन, हम मल्टीपल एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मल्टीपल एंटीबायोटिक्स to be given as a part of the treatment plan for tuberculosis? So number 1, kill bacteria so that no reservoir of infection remains. जितना भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है वो सारे का सारा हम इराडिकेट कर दें, रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें, किल कर दें, ताकि कोई भी रेजर्वोयर बैक्टीरिया का ना बचे जो कि इन्फेक्शन कॉज करे. क्योंकि जब टीबी का रिलैप्स होता है ना, यानी एक दफ़ा आपको टीबी हो गया और उसके फ़ौरन बाद फिर से आपको ट्रिगर हो गया, फिर से रिलैप्स हो गया, क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था. सो जो बैक्टीरिया पीछे बच गया था, अगर उससे फिर से आपकी बॉडी में टीबी कॉज किया, इन्फेक्शन कॉज किया, सो दैट रिलैप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज़ वेरी फेटल, इट इज़ वेरी लीथल, इट इज़ वेरी डेंजरस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी give multiple antibiotics and the treatment is prolonged so that we can get rid of all the bacteria which can possibly cause tuberculosis in your body, so that there is no reservoir, no store of bacteria that remains to cause any sort of tuberculosis infection. Number 2, reduce the chances of developing antibiotic resistance. अगर मैं खाली एक ही antibiotic दूंगी, so the bacteria is exposed to a single antibiotic, it is very easy for the bacteria to develop resistance against one single antibiotic. ठीक है, ये ऐसी बात हो गई कि एक सोल्जर है, बेसिकली 2 लोग लड़ रहे हैं, इट्स 1:1 का रेशियो. सो इट्स ईजी व्हेन इट्स अ 1-on-1 कॉम्बैट बिटवीन 2 people. सो एक इंसान दूसरे इंसान को आराम से ओवरकम कर सकता है, डिफीट कर सकता है. सो अगर मैं बैक्टीरिया को एक ही दवा देती रहूँगी, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा दुश्मन है, मैंने इससे अपने आप को बचाना है, और वो म्यूटेट करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा अगेंस्ट दैट वन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक. अब एक इंसान हो, ठीक है,
there is this one person, and then this person is attacked by 4 people. तो ये बेचारा एक अकेला इंसान है और उसको अटैक करने के लिए कितने लोग हैं? उसको अटैक करने के लिए 1 2 3 4 लोग हैं. सो ऑब्वियसली नाउ this one individual would find it very difficult to overcome, to combat, to defeat these 4 attackers. Similarly, imagine कि हमारे पास जो ये एक इंसान है ना अकेला, that is your bacteria and it is exposed to 4 different antibiotics. अब उसके लिए म्यूटेट करना और सारी की सारी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करना वुड बी अ चैलेंजिंग टास्क. So when we are providing multiple antibiotics as a part of the treatment plan against a bacterial infection, we are trying to reduce the chances of developing antibiotic resistance. To overcome antigenic concealment. Now what is antigenic concealment? Antigenic concealment is basically हमारे पास जो antigens होते हैं, हमारे जो pathogens होते हैं, वो immune system से बच के cells में छुप जाता है. So antibiotics, basically multiple antibiotics have multiple mode of actions. तो मेरे पास multiple antibiotics can ensure that even the cells which have evaded, which have escaped the natural immune response, natural defense mechanism of our body against pathogen, उन cells को भी जो छुप गए हैं immune system के attack से, उन तक भी, उन antigens, उन pathogens तक भी वो antibiotics reach करके, जो कि छुपे हुए होते हैं inside cells, उनको reach करके, उनसे bind करके, उनको kill कर सकें. So bacteria antibiotics try to overcome antigenic concealment, क्योंकि antigenic concealment basically क्या करती है? It is basically a strategy which pathogens have, a lot of pathogens have, that they hide in body cells so that they're not present in the bloodstream for the WBCs, for the immune system to identify them and to attack them and to finish them. So वो तमाम cells जो WBC से छुप के दूसरे cells में बैठे हुए होते हैं, उन antigens, उन pathogens तक antibiotics पहुंचती हैं, उनसे bind करती हैं और उनको eradicate करती हैं. Now, there are first line drugs which are given for tuberculosis, जिसमें आपके पास isoniazid होता है, rifampicin होता है, ethambutol होता है, pyrazinamide होता है. ठीक है, these are the first line drugs which are given. And if the pathogen is resistant to all first line drugs, so in that case scenario, we then move to the second line drugs if there is resistance against the above forementioned antibiotics. Now, एक प्रोग्राम है जो कि WHO ने इंट्रोड्यूस किया है, DOTS. DOTS stands for Directly Observed Treatment Short Course. And WHO basically launched this program, this policy, because हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज़ नॉट फाइनेंशियली well off. So many sufferers in the developing world have limited financial resources and are possibly less literate. Any mistaken tuberculosis treatment is likely to increase the chances of antibiotic resistance. For this reason, policy of DOTS has been developed by WHO. The main points of this program are that the country's local authorities, the government, cooperate with WHO in implementing and ensuring that this program is effectively managed and taken place in that country. So obviously the cooperation and commitment of the local authority, of the local government is needed for the success of this short course, of this treatment plan. Then diagnosis and monitoring using sputum smear microscopy. जो diagnostic techniques हैं उनकी accessibility होनी चाहिए लोगों के पास. And the people should have the standardized treatment for at least 2 months. I just told you a while ago that हमारे पास because TB is a prolonged chronic disease and it is in the body for about 6 to 7 months कम से कम. तो ऑब्वियसली उसका एक लंबा ट्रीटमेंट प्लान होता है. तो अगर अक्सर क्या होता है,
a lot of people in the underdeveloped countries, in the developing countries, in your third world countries, they do not take the treatment of TB because they're like, ये तो इतनी महंगी दवाएं हैं, ये तो इतनी लंबी ट्रीटमेंट होगी, तो इतने महीनों की दवाएं हम कैसे खरीदेंगे, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते. सो फिर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते और फिर वो ऑब्वियसली in a lot of cases they're not able to successfully defeat tuberculosis and basically हमारे पास उनकी डेथ अकर होने के हाई चांसेस होते हैं. सो अगर गवर्नमेंट लेवल पर डॉट्स का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, सो गवर्नमेंट जब डॉट्स को इम्प्लीमेंट करवा रही है अपनी कंट्री में या अपने प्रोविंस में, अपने स्टेट में, तो it's the responsibility of the health ministry of that particular area or whoever is responsible for managing the DOTS program that the patients, the sufferers are getting at least 2 months of standardized treatment. ठीक है? A regular medicinal drug supply, उनको जो standardized treatment मिल रहा है, तो obviously उनको drug supply, उनको दवाओं की accessibility, उनको दवाओं की supply मिलनी चाहिए. And a standardized recording and reporting system that allows assessment of treatment results. तो जिस तरह और खाली दवाएं नहीं प्रोवाइड करके उनको भेज देना है, कंटिन्यूसली हमें उनके रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स लेते रहने हैं कि उनका 1 वीक पे या 2 वीक्स में हम उनको फॉलोअप के लिए बुलाएं और देखें कि अब उनकी ट्रीटमेंट या अब उनकी बीमारी की क्या प्रोग्रेस है, वेयर आर दे स्टैंडिंग. So these are basically the main points or the policy that WHO has issued under the heading of DOTS. अच्छा जी, और क्या है हमारे पास? Now, prevention and control. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हमारे पास एक डिजीज़ का किस तरह से हो सकता है. एक तो आप एजुकेट करें आवाम को कि एजुकेशनल अवेयरनेस हो कि किस तरह से टीबी फैलता है. जो रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकता है हमारे पास? एज आई जस्ट मेंशन, ट्यूबरक्यूलोसिस हमारे पास एक ऐसा सवाल बन सकता है एग्जाम में. सो लेट्स डिस्कस that tuberculosis is prevalent in parts of the world which are underdeveloped, and it is observed that in areas where there is AIDS, the percentage or the frequency of tuberculosis is also very high. Explain why. So आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ टीबी का क्यों इतनी ज़्यादा परसेंटेज है, और उन जगहों पे जहाँ एड्स कॉमन है वहाँ एड्स के साथ साथ टीबी भी कॉमन क्यों है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाई TB is present in third world countries or underdeveloped countries, तो आप ये बोलोगे कि सबसे पहले हमारे पास जो underdeveloped countries हैं वहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस हैं, वहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर जो लाइफस्टाइल है वो अप टू डेट नहीं है. वहाँ पर यूजुअली अगर हम पाकिस्तान की बात करें या अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो सब कॉन्टिनेंट में देर आर मैनी पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, एंड इवन द पीपल हु बिलोंग फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास स्ट्रैटा और लोअर क्लास. वहाँ पर जो हमारी हाउसिंग जिस तरह की है या जो हमारी लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में ओवर क्राउडेड है. सो ओवर क्राउडेड है तो ऑब्वियसली टीबी एरोसोल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक इंसान से दूसरे इंसान में आराम से हवा के ज़रिए, खांसने से, छींकने के ज़रिए ट्रैवल कर सकता है. सो उन कंट्रीज़ में जहाँ ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस हैं, पुअर सैनिटेशन है, जहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं बेसिकली, वहाँ पर बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, तो ज़्यादा इंटरेक्शन है लोगों की आपस में, और जहाँ पर ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस हैं वहाँ पर टीबी बहुत जल्दी और बहुत आराम से फैलेगा. और जहाँ पर पुअर सैनिटेशन होगी, पुअर लिविंग कंडीशंस होगी, वहाँ पर ऑब्वियसली पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे. पैथोजन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन भी होगा. सो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो. ओवर पॉपुलेशन जहाँ पर है, ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस जहाँ पर है, और पुअर सैनिटेशन जिन कंट्रीज़ में वहाँ पर टीबी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. सिमिलरली हाँ, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, फॉर एग्जांपल गैस की फराहमी नहीं है, आग की फराहमी नहीं है, बेसिक कुकिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, सो प्रॉपरली आप मीट कुक नहीं कर पा रहे हो, आप पेस्चराइज्ड मिल्क कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, तो आप अनपेस्चराइज्ड मिल्क कंज्यूम करो, तो वहाँ पर भी आपको ट्यूबरक्यूलोसिस कॉमनली नज़र आएगा. नाउ why is tuberculosis also common in areas or in countries where AIDS is common? That is because AIDS is a
is basically an acquired immune deficiency syndrome. So in that syndrome, your immunity is compromised, your immune system is weakened. So your body's natural defense mechanism is weakened. It's reduced. It's not, functioning properly. It's impaired. तो हमारे पास हमारा इम्यून सिस्टम क्योंकि वीक है, हमारी बॉडी अब हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो एड्स क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को आपके WBCs को अफेक्ट कर रहा होता है, तो इस वजह से आपकी इम्यूनिटी क्योंकि कम हो चुकी होती है, रिड्यूस हो चुकी होती है, आपकी टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हो रहा होता, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली जनरेट नहीं होता। इस वजह से आप बाकी जो इन्फेक्शंस हैं, बाकी जो बीमारियां हैं, वो आप बहुत आराम से इन्वायरमेंट में अक्वायर कर सकते हो। So because your immunity is compromised in AIDS, that is why your body is unable to protect you against opportunistic infections such as tuberculosis. The immune system is unable to properly produce antibodies against the pathogen, and henceforth tuberculosis is prevalent in regions where AIDS is also common. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं? एजुकेट करें लोगों को कि बीमारी क्या है, कैसे फैल सकती है। और दूसरा ये दैट द प्रिवेंशन ऑफ टीबी इन्वॉल्व्स द डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और क्वारंटाइन सो दैट डिजीज इज नॉट स्प्रेड। हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास कैरियर्स कौन से हैं, सिम्टम वाले कैरियर, सिम्टोमेटिक कैरियर्स कौन से हैं, एसिम्टोमेटिक कैरियर्स कौन से हैं। उन कैरियर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको क्वारंटाइन करवाएं ताकि वो फिर अपना इन्फेक्शन जो है वो आगे लोगों को मुंतकिल ना कर सकें, ट्रांसमिट ना कर सकें। सिमिलरली मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू डेवलप हर्ड इम्यूनिटी। अगर कम्युनिटी में 70 to 80 to 90% people are vaccinated, they have antibodies made against the pathogen, तो हमारे पास ओवरऑल वो जो माशरा है, वो जो कम्युनिटी है, उसमें एक ओवरऑल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी, एंड हैंसफोर्थ ओवरऑल उस रीजन में वो बीमारी या वो पैथोजन कम हो जाएगा बिकॉज द मास पॉपुलेशन इज नाउ इम्यून टू दैट पैथोजन। ठीक है जी। नाउ लास्ट पार्ट जो हमें करना है वो है BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन हम सबको ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर लाइफ लगती है। अक्सर लोगों के निशान भी होता है उनके आर्म पे BCG वैक्सीन का, जो पैदाइश के वक्त लगती है। BCG वैक्सीन इज अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम इंजेक्शन में एक वीकेंड फॉर्म या अटेनुएटेड फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया डालते हैं। और इस बेसिकली अटेनुएटेड या वीकेंड पैथोजन क्या होता है, एक ऐसा पैथोजन विच does not have disease causing ability। हम इसको आपकी बॉडी में इंसर्ट ज़रूर कर देते हैं और ये आपकी बॉडी में ऑब्वियसली एज ए नॉन सेल्फ एंटीजन कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, to build antibodies, to build memory cells against the pathogen, ताकि आपकी एक immunological memory retain हो सके। So if God forbid you're exposed to the same pathogen in the future, so your body already recognizes the pathogen, it has the necessary memory cells for that pathogen, and it can easily secrete antibodies against it. Now, the pathogen does not cause disease, instead triggers the immune system to produce antibodies against the pathogen in order to develop immunity if the same pathogen naturally invades the body in future. Now, what is the problem which is what are the problems which are associated with BCG vaccine? It is not very effective। ठीक है, इतनी ज़्यादा ये आपको immunity protection against the bacteria नहीं provide करती। It does not work for all ethnic groups। इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्वियसली हमारी अक्रॉस द ग्लोब वी हैव डिफरेंट एथनिसिटीज़, वी हैव एशियंस, वी हैव कॉकेशियंस, वी हैव अफ्रीकन्स, वी हैव यूरोपियंस, वी हैव अमेरिकन्स। ठीक है, सो ऑल दीज ग्रुप्स आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, इनका डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एरियाज़ का जो जिनोम होता है वो भी थोड़ा बहुत कल्चर से अफेक्टेड होता है, वेरी करता है, बिकॉज जो हमारा जेनेटिक, जो हमारा बेसिकली वो है, हमारा जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है, that is basically a result of our genome and our environmental conditions। तो हमारा environment और हमारा genes, ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फिनोटिपिक फीचर्स हैं, हमारी जो फिनोटिपिक क्वालिटीज़ हैं वो एक्सप्रेस होती हैं। सो जीन्स का भी हाथ होता है और हमारे जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे होते हैं उसका भी हाथ होता है
in the kind of features and in the kind of body mechanisms we have. So obviously Asians are different from Africans, or Africans are different from Caucasians, Caucasians are different from Americans. तो बहुत सी चीज़ें हमारी आपस में ड्यू टू द डिफरेंस इन एथनिसिटीज वेरी करती हैं. So a good vaccine, an effective vaccine is the one which is effective for all age groups. बड़े से लेके छोटे तक, बड़े से लेके छोटे तक वो इफेक्टिव हो, सबको प्रोटेक्शन, सबको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हो. And across the globe, across all ethnicities, it is effective. It works for all the people around the globe. However, that is not the case for BCG. Requires cold chain. अब cold chain का क्या मतलब है? That this vaccine would basically not survive if it is not provided. Basically, survive is the wrong word to use over here. The vaccine would become मतलब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी अगर आप उसको कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे. इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल, अगर हमारे घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है एंड दैट डायबिटिक पेशेंट इज इंसुलिन डिपेंडेंट एंड वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, तो आपने देखा होगा वो अपनी जो इंसुलिन है उसकी जो वो होती है फ्लूइड होता है जो कि इंसुलिन का होता है, जो ड्रग होता है बेसिकली, वो हमेशा हम फ्रिज में स्टोर करते हैं और कहते हैं कि फ्रिज से बाहर मत रखना, रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा देर तक रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगी. So vaccines which require a cold chain, which require a cold environment, basically are destroyed, खराब हो जाती हैं अगर तो उनको वो कोल्ड इन्वायरमेंट, कोल्ड चेन ना प्रोवाइड की जाए. अब फॉर एग्जांपल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं इस वैक्सीन को. सो ऑब्वियसली यूरोप से ये वैक्सीन बनकर आ रही है पाकिस्तान में, इसको 16 घंटे की, 10 घंटे की, 6 घंटे की फ़्लाइट के थ्रू हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में हम आई हैव टू इंश्योर कि कोल्ड चेन इसको मिले, ठीक है. एंड इफ़ फॉर सम रीजंस द कोल्ड चेन इज़ नॉट प्रॉपरली प्रोवाइडेड, या वो बीच रास्ते में सारी आइस मेल्ट कर गई, या जो भी सिलसिला हुआ, तो मेरी इतनी सारी जो वैक्सीन है वो ख़राब हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मेरे पास जो इसका इम्पोर्ट करने की ड्यूरेशन में कोल्ड चेन जो मुझे प्रोवाइड करनी थी वो इफेक्टिवली प्रोवाइड नहीं हो सकी, तो मेरी इतनी सारी वैक्सीन ज़ाया हो जाएंगी. तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस वैक्सीन का. Does not always give lasting protection. Lifelong protection against TB BCG vaccine नहीं देती है. Effectiveness decreases with years unless exposure to TB. अब इसका क्या मतलब हुआ? This basically means that मेरे पास for example as I mentioned कि जो हमारी BCG वैक्सीन है वो हमें कब मिलती है? वो हमें मिलती है on our first day ऑफ बर्थ. ठीक है, जब हम पैदा होता है हमें उसी दिन BCG वैक्सीन मिल जाती है. अब हमने BCG वैक्सीन जब हमें मिली तो हुआ क्या, ये हमारी नंबर ऑफ एंटीबॉडीज और ये हमारा टाइम आ गया इन ईयर्स. मुझे डे 0 पे मिली BCG वैक्सीन जिसमें एक अटेनुएटेड पैथोजन था. ऑब्वियसली जैसे ही मैं पैथोजन, एक वीकेंड पैथोजन से एक्सपोज हुई, मेरी बॉडी ट्रीटेड दैट वीकेंड पैथोजन एज a foreign particle, as a non-self antigen, and it produced antibodies against it. तो मेरे पास एंटीबॉडी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होना शुरू हुई, इंक्रीज हुई. नाउ मेरे पास जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, ईयर्स प्रोग्रेस करते जाएंगे, विद टाइम मेरे पास ये एंटीबॉडी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जाएगी अनलेस एक्सपोजर टू टीबी. अगर तो मुझे ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम आई एम एक्सपोज टू टीबी तो फिर क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं, ये मेरा 10th ईयर ऑफ लाइफ है, 10th ईयर पे आई एम एक्सपोज टू टीबी, मुझे टीबी का वायरस कहीं से मैंने अक्वायर कर लिया है एट दिस पॉइंट. So now because I have acquired the
वायरस मैं बोल रही हूँ, मैंने टीबी का जो बैक्टीरिया है, टीबी का जो पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, मैंने वो अक्वायर कर लिया है, आई एम एक्सपोज टू इट. सो नाउ माई बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स वुड बी ट्रिगर्ड, my adaptive immune response would be triggered, my antibodies would be producing against tuberculosis. तो अब मेरे पास फिर से मेरी एंटीबॉडीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. लेकिन ये कब होगा? ये सिर्फ उस केस सिनेरियो में होगा अगर मैं फिर से अपनी लाइफ टाइम में एक्सपोज हूँ नेचुरली टीबी से. ठीक है. सो इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस, यानी एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विद ईयर्स अनलेस एक्सपोजर टू टीबी. नो वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन प्रोग्राम. हमारे पास मीजल्स के लिए क्या हुआ था? हमारे पास मीजल्स के लिए एक वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ था एंड वी वर एबल टू इरेडिकेट मीजल्स फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड. उसी तरह से चिकन पॉक्स के अगेंस्ट हमारे पास मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो चुका है एंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं दे आर पोलियो फ्री. ठीक है. सो इफ अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऑल द कंट्रीज आर पोलियो फ्री. वाई? बिकॉज हमने मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम अराउंड द ग्लोब करवाया. सिमिलरली अभी मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कोविड की. हम सब ने कोविड का पेंडेमिक देखा हुआ है. कोविड में भी ग्लोबली क्या हुआ था? वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ था. पूरी दुनिया में तमाम लोगों को वर्ल्ड वाइड कोविड की वैक्सीन लगी थी ताकि लोग कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी बिल्ड करना शुरू कर दें. Many symptomless people due to long incubation period of MTB. Now, what is incubation period? Incubation period is the time period between exposure to a pathogen and the first symptoms appearing in the host. मेरे पास मैं एक दिन जा रही थी और चलते चलते मैंने कहीं से इनहेल कर लिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस. नाउ मैंने फॉर एग्जांपल इनहेल किया 1 जनवरी को. ठीक है. 1 जनवरी को जो मेरा माइकोबैक्टीरियम है वो मेरी बॉडी का पार्ट बन गया. ठीक है. मेरी बॉडी में वो आ गया है, मेरे ब्लड सिस्टम में वो आ गया है. और हुआ क्या कि जो सिम्टम्स मुझे डेवलप हुए, मैंने खांसना शुरू किया, मुझे बुखार चढ़ा 12 जनवरी को. मेरी बॉडी कब एक्सपोज हुई थी इस पैथोजन से? 1 जन. ठीक है. इट वॉज एक्सपोज ऑन 1 जनवरी and the symptoms appeared on 12 January. Between 1 January and 12 January मुझे कोई symptoms नहीं थे. मैं बिल्कुल हेल्दी थी, बिल्कुल नॉर्मल थी और मैं दुनिया जहाँ में लोगों से मिल रही थी, सोशलाइज कर रही थी. I was in gatherings and I might have shaken hands with people, I might have hugged people, I might have not been very cautious when I'm sneezing or when I'm coughing or when I'm yawning. तो मुझे 12 दिन में पता ही नहीं है that I have a pathogen, I have a transmissible pathogen, a bacteria of tuberculosis inside me. So because we have such लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, तो हमारे बहुत सारे सिम्टमलेस पीपल होते हैं जिनको हम वैक्सीन नहीं दे पाते, जिनको हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाते. सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस वी फेस इन द ट्रीटमेंट प्लान and in developing a vaccine for TB is that there are many symptomless people due to long incubation period of mycobacterium or antigenic variation. मेरा जो बैक्टीरिया है वो वेरी कर जाता है. अभी अगेन आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ कोविड. हमारे पास काफ़ी महीने लग गए थे वर्ल्ड वाइड एक वैक्सीन बनाने के लिए, राइट? इफ आई एम remembering it correctly, COVID came in 2020 and I got my vaccination done in 2021. So almost 1 साल लगा था कोविड की वैक्सीन आने में, कोविड की वैक्सीन बनने में. और मसला क्या आ रहा था? मसला ये आ रहा था कि वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा था, वायरस में बहुत जल्दी वेरिएशंस आ रही थी. एक वैक्सीन बनती थी, वायरस म्यूटेट कर गया, वो वैक्सीन अब इफेक्टिव ही नहीं रही. सो एंटीजेनिक वेरिएशन इतनी होती है माइकोबैक्टीरियम में that we are unable to make a solid effective vaccine against that bacteria. So yeah, we are done with the chapter of with basically the subtopic of tuberculosis. So that's it for today.